پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطہ بحال. بمان بنگلہ دیش ایئر لائن کی پہلی براہ راست پرواز ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی. جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے کو واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا. طیارے میں 149 مسافر سوار تھے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے خوش آمدید کہا. ایئرپورٹ پر کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی. گورنر کا کہنا تھا سازشیں ناکام اور دوریاں ختم ہو گئی. بنگلہ دیش کے عوام کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا. بنگلہ دیش اور بھارت کی محبت کا سلسلہ روابط میں بدلے گا. یہ سفر محبت، امن اور تجارت کا ذریعہ بنے گا. دونوں ممالک کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان کا متحد ہونا بھارت کے منہ پر تماچا ہے. دونوں ممالک مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے. براہ راست پروازوں کی بحالی دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل قرار. براہ راست پرواز پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے عظیم لمحہ ہے. بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر کہتے ہیں دونوں ممالک میں تعلقات مزید گہرے ہوں گے. تجارت، سیاحت، صحت، تعلیم سمیت کئی شعبوں میں باہمی شراکت داری کو تقویت اور توسیع ملے گی. پی آئی اے نجکاری کی ٹرانزیکشن سے متعلق دستخط کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت. وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کا عمل آج شاندار انجام کو پہنچا ہے. عارف حبیب اور ان کی ٹیم کا پاکستان کی صنعتی ترقی میں نمایاں کردار ہے. عارف حبیب نے تقریب سے خطاب میں کہا بہت جلد بڑی تبدیلی نظر آئے گی. کنٹرول ملتے ہی دن رات کام کریں گے. وزیر اعظم کی توقعات پر پورا اتریں گے. افسروں جواب دو، خون کا حساب دو. وزیر اعلیٰ پنجاب شدید غصے میں بڑے افسران پر برس پڑی. لاہور میں ماں بیٹی کی المناک موت پر پہلے بریفنگ لی، پھر تیکھے سوالوں کے ساتھ کلاس لی. کہا اس غفلت میں اور قتل میں زیادہ فرق نہیں. اگر یہ میری یا آپ کی بیٹی ہوتی تو سارا سسٹم ہل کر رہ جاتا. کمشنر، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر، ایل ڈی اے اور واسا سب ذمہ دار ہیں. ہر سطح پر مجرمانہ غفلت ہوئی. خاتون کے شوہر کو ہمدردی کے بجائے تھانے لے گئے. کانٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے لے کر لواحقین کو دیے جائیں. سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان. سندھ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں کہا عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کیا. انکوائری مزید شفاف بنا رہے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. غفلت برتنے والے بڑے افسران معطل کر دیے گئے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرن انچارج، چیف انجینئر بلک واٹر بورڈ، سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس، ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس جنوبی کی معطلی. اور 7 سال اور 7 میچز کا انتظار ختم. پاکستان نے 2018 کے بعد آسٹریلیا کو T20 میں پہلی شکست دے دی. پہلے T20 میں گرین شرٹس 22 رن سے کامیاب. 169 رنز کے تعاقب میں کینگروز 8 وکٹس پر 146 رنز بنا سکے. اپنی کوتاہی ماننے میں، معافی مانگنے میں میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. میرے سے یقیناً یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا، اور اس گناہ کے لیے میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار تھی. اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. بھاٹی گیٹ واقعے پر وزیر اطلاعات پنجاب کی معذرت. کہا افسوسناک واقعے پر دکھی اور شرمندہ ہوں. انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے. وزیر اعلیٰ نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں، ذمہ داران کو گرفتار کرایا. پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں. میں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں. انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا. استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار تھی. وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، میری غلطی نہیں. پی آئی اے نجکاری کی ٹرانزیکشن سے متعلق دستخط کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت. وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کا عمل آج شاندار انجام کو پہنچا ہے. عارف حبیب اور ان کی ٹیم کا پاکستان کی صنعتی ترقی میں نمایاں کردار ہے. عارف حبیب نے تقریب سے خطاب میں کہا بہت جلد بڑی تبدیلی نظر آئے گی. کنٹرول ملتے ہی دن رات کام کریں گے.
वजीर आजम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। सरहदों का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भावलपुर गैरिजन में गुफ्तगू। खैरपुर आमियावाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। कहा जंग की नौयत तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल के मैदान जंग के तकाज़ों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुज़ीर है। मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ज़हनी तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मशकों में ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म, पेशा महारत और तैयारियों को सराहा। रोही स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की पिम्स में तिब्बी मुआयने की तस्दीक कर दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI को हफ्ते की शब पिम्स ले जाया गया, आंखों का मुआयना किया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान गुज़श्ता रोज़ तक इन खबरों की तरदीद करते रहे। बीमारी और हस्पताल मुंतकिली की खबरों को जाली करार दिया था। कहा इलाज की ज़रूरत होती तो छुपाने की क्या ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का मुशावरती अमल बरकरार रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफ़ाक़ किया बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद हल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शामिल न होने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा फ़लस्तीन पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। खुलूस नियत से गज़ा अमन बोर्ड में शामिल हुए, जिसका मकसद गज़ा में अमन का क़याम है। ईरान से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल का मुखालिफ है। सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है। ख़ित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान में बैरूनी मुदाखलत और पाबंदियों की मुखालिफत करते हैं। तर्जुमान ने बताया क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला PCB और मुताल्लिक़ा इदारों का है। माजी में क्रिकेट के हवाले से राय मांगे जाने पर दफ्तर ख़ारजा अपनी राय देता रहा है। बानी PTI की बीमारी को छुपाया गया। फैमिली को इतला क्यों नहीं दी गई। ज़ाती मौलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं बानी की जिंदगी के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी की फैमिली, पार्टी और बुकला की मुलाकात जरूरी है। मुलाकात से हालात को मजीद संगीन होने से बचाया जा सकता है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल के बाहर धरने से गुफ्तगू में कहा 5 दिन इस जाली हुकूमत ने झूठ बोला। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ खानदान को बेखबर रखा गया। बानी की आंख का ऑपरेशन हुआ है। हमें इंतहाई तशवीश है। हम तमाम MPAs, MNAs को अडियाला जेल बुला रहे हैं। अदालती फैसलों के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई जाए। आमदन से जायद असासाजात। PTI MPA डॉक्टर अमजद अली की इलेक्शन कमीशन में तलबी। नाअहली से मुताल्लिक़ केस 3 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर अमजद अली को नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती तौर पर या वकील के जरिए पेशी लाजमी करार। डॉक्टर अमजद को गोशवारों में मुबैना तज़ाद पर नोटिस जारी किया गया। कराची के ICI पुल पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक अफराद की शनाख्त गुलफाम और आमिर के नाम से हुई। गुलफाम से पुलिस कांस्टेबल का कार्ड मिला। डिस्ट्रिक्ट सिटी में तैनात था। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हुआ, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
सिख फॉर जस्टिस की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए $1 करोड़ की पेशकश। गुरपतवंत सिंह का बोर्ड ऑफ पीस के तहत खालिस्तान रेफरेंडम पर मुज़ाकरात का मुतालबा। कहा, भारत के ज़ेर कब्जा पंजाब जनूबी एशिया का ग्रीनलैंड है। मोदी सरकार पंजाब में जबर, गिरफ्तारियां और जाली मुकाबले करवा रही है। ट्रंप मोदी सरकार को मुज़ाकरात पर आमादा करें और रेफरेंडम की इजाज़त दिलाएं। गुरपतवंत सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप के अमन इक़दाम को तारीखी कदम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन के विजन पर मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात और दिफा दोनों के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ने अमरीकी सदर के बयान पर सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। कहा, दबाव डाला गया तो ईरान अपना दिफा करेगा, ऐसा रद्द-ए-अमल देगा जो पहले कभी नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान में रजीम चेंज वेनेज़ुएला से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। कोई नहीं जानता सुप्रीम कमांडर को हटाया गया तो कौन इक़्तिदार संभालेगा। ईरानी हुकूमत पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी। जर्मन चांसलर का कहना है, ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ईरान की मौजूदा हुकूमत के पास हुक्मरानी का कोई इखलाकी या सियासी जवाब बाकी नहीं रहा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने चीन को आलमी सतह पर अहम खिलाड़ी करार दे दिया। केयर स्टारमर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीन से बेहतर ताल्लुकात के मुआशी फ़वाइद पर जोर दिया। कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। ये ज़रूरी है कि हम संजीदा ताल्लुकात कायम करें। शी जिनपिंग ने कहा, अच्छी चीज़ें अक्सर वक्त और मेहनत मांगती हैं। हमें तवील मुद्दती नुक़्ता नज़र इख्तियार करना चाहिए, इख्तिलाफ़ात से आगे बढ़ना चाहिए और बाहमी एहतराम को बरकरार रखना चाहिए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। हसीन वादियों पर सफ़ेदी छा गई। स्तोर में दर्जा हरारत -9, कालाम -8 और स्कर्दू में -9 डिग्री तक गिर गया। बटग्राम में बर्फबारी ने हर शय मुंजमद कर दी। आमद और रफ्त मुश्किल, मुताद्दिद मकामात पर खंबे गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। रास्तों की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शांगला में बर्फबारी के बाद बेशाम सोआत रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बुनेर के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद इलाके ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। अमेरिका के वस्ती और मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हलाकतें 70 हो गईं। मामूलाती ज़िंदगी मुंजमद। शिकागो में दर्ज हरारत -14 और क्लीवलैंड में -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी शदीद बर्फबारी। बाज़ इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बर्फबारी का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहने की पेशगोई।